اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے فرعون اور حضرت آسیہ کی حیران کن شادی کا واقعہ۔ فرعون نے اپنی محبوب بیوی کی کھال کیوں اتروائی؟ وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا۔ فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبیطیہ سے تھا اور اس کی عمر 400 سال تھی۔ اس 400 سال کی عمر میں نہ تو وہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اس کو قبوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ اگرچہ یہ دونوں ملعون کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور ان دنوں شہر میں خربوزوں خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا، اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت اس خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا کہ میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار میں جا کر فروخت کراؤ۔ جب یہ مال تم دونوں فروخت کر لو گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا، تم یہیں ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کر آتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا تو اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا، ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا۔ واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس کی وجہ سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپے پیسہ کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر کے اسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دیا جائے اور اس غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی جائے اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیہ کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی۔ چنانچہ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروگی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آئے گا جو اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کرے گا۔ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا زیادہ مال و دولت اکٹھا ہو جانے کے بعد فرعون نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کو اپنے انڈر میں کیا جائے، لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے وقت کے بادشاہ کو بہت سارے پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستان کی دروگی اپنے ذمے لے لی۔ چنانچہ اس طرح فرعون قبرستان کی دروگی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا روپے پیسہ جمع کرواتا اور فرعون کے اس عمل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا اور بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا اور چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ قریب بندہ بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا اور حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر
अगर तू खुदाई का दावा करना चाहता है तो सबसे पहले बनी इसराइल की तमाम मखलूक को अपने हाथ में ले ले और इनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर। हमान की यह बात सुनकर फिरौन ने हमान से कहा कि ऐसा करने के लिए आखिर क्या किया जाए और ये लोग किस तरह मुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे, क्योंकि इस वक्त तमाम लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर थे और किस तरह वो लोग अपने दीन को छोड़कर फिरौन को अपना खुदा तस्लीम करते। इस वक्त फिरौन ने अपने दोस्त हमान से इसके बारे में कोई तदबीर निकालने का कहा। फिरौन की ये बात सुनकर हमान कुछ देर के लिए सोचता रहा और फिर ये तदबीर निकाली कि बादशाह मिस्र से ये दरख्वास्त की जाए कि मैं चाहता हूँ कि मिस्र के तमाम लोगों की तमाम तर ख्वाहिशात मुफ्त में पूरी की जाए और इन लोगों के तमाम तर अखराजात मैं अपनी जेब से अदा करूँगा और जो लोग जो चीज़ भी हासिल करना चाहें वो मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। चनाचा इस वक्त बादशाह मिस्र ने फिरौन की ये बात सुनकर इसकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली और एक साल के लिए तमाम मिस्रियों को ये रायत फराम कर दी और फिरौन ने एक साल में होने वाले तमाम तर अखराजात की रकम हमान के हाथों बादशाह के खजाने में जमा करवा दी और पूरे मिस्र में ये ऐलान करवा दिया गया कि इस साल खजाना रायतों पर दस्तयाब है। हमने अपनी तरफ से तमाम तर अखराजात की रकम बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करवा दी है और मज़ीद 2 साल के अखराजात की माफ़ी के लिए हमने दरबार आला में दरख्वास्त की है और वह भी कबूल होगी है। चनाचा फिरौन की यह बात सुनकर मिस्र के तमाम लोग बहुत खुश हुए और मिस्र के तमाम लोगों ने फिरौन की तरक्की के लिए खूब दुआएं की। चनाचा इधर मिस्र की अवाम फिरौन के इस अमल से बहुत खुश थी और उधर चंद दिन बाद मिस्र का बादशाह अल्लाह के हुक्म से अपनी मौत आप मर गया। चनाचा इस वक्त मरने वाले बादशाह का कोई भी वारिस ना था जो इसके तख्त पर बैठता और इसकी बादशाहत को संभालता। इस तरह मिस्र के बादशाह की तदफीन के बाद 3 दिन तक इबादत होती रही और चौथे रोज़ मिस्र के तमाम लोग बादशाह मिस्र के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे, बादशाह के तख्त पर किसको बिठाया जाए, क्योंकि मुल्क बादशाह के बगैर नहीं चल सकता। चनाचा इस वक्त मिस्र के लोगों ने फिरौन से ये नेकी देखी थी कि फिरौन ने 3 बरस का खजाना मिस्र के लोगों पर माफ़ करवाया था और इनके अखराजात का खर्च अपने पास से बादशाह मिस्र को दिया था। इसलिए मिस्र के तमाम लोग फिरौन के इस अमल से बहुत ज़्यादा खुश थे। फिरौन की ये खैर ख्वाही देखकर मिस्र के लोगों ने बदबख्त फिरौन को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया और इस तरह फिरौन बदबख्त मिस्र का बादशाह बन गया। इस वक्त लोगों ने यह ख्याल किया कि फिरौन बहुत अच्छा इंसान है और हमारी राया का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। इस तरह जब ये फिरौन मिस्र के वजीर से मिस्र का बादशाह बना तो इस वक्त फिरौन ने अपने दोस्त हमान को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। फिरौन मिस्र का बादशाह बनते ही अपने दोस्त हमान से कहने लगा कि अब पूरे मिस्र में हमारी बादशाही है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इस वक्त फिरौन ने हमान से कहा कि अब कोई ऐसी तदबीर निकालो जिसकी वजह से मिस्र के तमाम तर लोग मुझे खुदा मानने लगे और मेरी इबादत करने लगे। इस वक्त हमान बदबख्त ने फिरौन को यह मशवरा दिया कि जितने भी उलमा दीन जो तदरीस का काम कर रहे हैं वह सब के सब दीन की तदरीस को ख़त्म कर दें और लोगों के दरमियान इस्लाम की तबलीग का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आस्ता आस्ता तमाम लोग अपने दीन से दूर हो जाएं और अपने दीन से बेखबर हो जाएं और आइंदा आने वाली नस्ल दीन से बेखबर और जाहल पैदा हो। चनाचा हमान की ये बात सुनकर फिरौन ने फ़ौरन ये हुक्म जारी कर दिया और मिस्र के अंदर दरसो तदरीस का ये सिलसिला ख़त्म कर दिया गया और फिरौन ने मिस्र के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी शख्स मिस्र में दरसो तदरीस ना करे वरना इसको कत्ल कर दिया जाएगा। फिरौन बादशाह का यह हुक्म सुनते ही दरसो तदरीस का ये सिलसिला ख़त्म कर दिया गया और मिस्र के लोगों ने बिल्कुल पढ़ना लिखना छोड़ दिया। चनाचा इस तरह दरसो तदरीस का सिलसिला ख़त्म होने के बाद वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ तमाम लोग जाहल बन गए और इल्म से दूर हो गए और अपने हकीकी खुदा अल्लाह ताला को बिल्कुल ही भूल गए। इस वक्त मिस्र के लोगों की ये हालत होगी कि वह जानवरों की तरह जाहिल बन गए। इस वक्त फिरौन ने तमाम मिस्र के लोगों को यह हुक्म जारी किया कि मिस्र के तमाम लोग अपने अपने घरों में बुत बनाकर इसको सजदा किया करें और इसकी पूजा किया करें। चनाचा फिरौन का यह हुक्म पाते ही एक कौम जो इस वक्त कसीर तादाद में थी उन्होंने बुतों की पूजा करना शुरू कर दी और आस्ता आस्ता ये बुत परस्ती बढ़ती चली गई और ये सिलसिला 20 साल तक जारी रहा। और फिर इसके बाद फिरौन ने मिस्र में ये ऐलान करवाया और इस ऐलान में ये अल्फाज लोगों के कानों तक पहुंचाए जिसका जिक्र कुरान पाक में यूँ मिलता है। और पास लोगों को जमा किया और लोगों से कहा, मैं हूँ रब तुम्हारा सबसे बड़ा और बुलंद। इस तरह लोग कई साल तक बुतों की पूजा करते रहे। जब लोग मुशरिक और बुत परस्त बन गए तो इस वक्त फिरौन ने यह हुक्म जारी किया कि अपने घरों में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया जाए और मुझे खुदा माना जाए
और मेरी पूजा की जाए। चनाचा फिरौन का यह हुक्म मिलते ही तमाम लोगों ने ऐसा ही किया। तमाम कौम ने बुतों को तोड़ दिया और फिरौन को पूजना शुरू कर दिया और फिरौन को खुदा मानने लगे। लेकिन किब्ती कौम के अलावा कोई दूसरा फिरौन को खुदा नहीं मानता था। किब्ती कौम वाहद ऐसी कौम थी जो फिरौन को अपना खुदा मानती थी और बाकी तमाम लोग अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते थे और अल्लाह ताला को अपना खुदा मानते थे। इसी वजह से फिरौन किब्तियों पर बहुत मेहरबान था और बनी इसराइल के मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म सतम किया करता था, क्योंकि बनी इसराइल की कौम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिन पर थी। इसी वजह से तो फिरौन इन पर जुल्म करता था। फिरौन तारीख में वह जालिम बादशाह गुजरा है जिसने खुदाई दावा किया था, जिसकी जुल्म की दास्तानों से तारीख के औराक भरे पड़े हैं। बनी इसराइल को गुलाम बनाकर इन पर बड़े जुल्म ढाए थे। बांदी और अपनी बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर इनको शहीद कर डाला था। आखिरकार अल्लाह ताला ने इसको उसके तकब्बर के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया। उसकी हुकूमत को निस्तो नबूद और तहस नहस कर डाला और रहती दुनिया तक के लिए इसको इबरत का निशान बनाकर ये साबित कर दिया कि तकब्बर का अंजाम सिर्फ बर्बादी है और तकब्बर सिर्फ अल्लाह की चादर है। फ़िरौन के महल में एक औरत फ़िरौन की बेटियों के बाल संवारा करती थी। एक बार वह फ़िरौन की बेटी के बाल संवार रही थी कि इनके हाथ से कंघी नीचे गिर गई। जब वो कंघी उठाने लगी तो उन्होंने अल्लाह का नाम लिया। जब इस बांदी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिया तो फ़िरौन की बेटी समझ गई कि ये तो मेरे वालिद को मबूद नहीं मानती बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर ईमान रखती है। चनाचा इस लड़की से पूछा कि क्या तुम मेरे वालिद को खुदा नहीं मानती हो? उसने कहा कि हरगिज़ नहीं, मेरा खुदा तो वो है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का परवरदिगार है। जब लड़की ने दो टोक जवाब सुना तो वो उठकर अपने बाप के पास गई और कहने लगी कि आपके महल में आपके ज़ीरे साया रहने वाली औरत आपको तो खुदा ही नहीं मानती। बेटी की बात सुनकर फ़िरौन गुस्से में आ गया। चनाचा वो कहने लगा कि मैं दरबार में जाकर इस औरत को ऐसी सज़ा दूंगा कि या तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के रब को अल्लाह कहने से बाज आ जाएगी या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। अब जब फ़िरौन अपने दरबार में पहुंचा तो उसने इस औरत को अपने पास बुलवाया और कहने लगा कि देखो भाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह को अल्लाह कहना छोड़ दो। वो कहने लगी कि हरगिज़ नहीं। तो उसने उसको बड़ा डराया धमकाया, मगर वो कहने लगी कि अब तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उनका यह दिलराना जवाब सुनकर फ़िरौन ने उससे अपनी अना का मसला बना लिया। चनाचा फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इसको ज़मीन पर लुटा दिया जाए, तो उन्हें ज़मीन पर लटा दिया गया। फिर हुक्म दिया इनके दोनों हाथों पाँव में कील गाड़ दी जाए। चनाचा इनके पाँव में कीलें गाड़ दी गई ताकि वो हरकत ना कर सकें। इसी दौरान वज़ीर आया और उसने फ़िरौन से कहा कि इसकी एक दूध पीती छोटी सी बच्ची भी है, अगर इसकी बेटी को इसके सामने ही कत्ल कर दो तो ये अपनी ममता से मजबूर होकर आपकी बात मान जाएगी। इसके बाद फ़िरौन ने इसकी इस दूध पीती बच्ची को घर से बुलवाया, उससे इसके सीने पर लुटा दिया। फिर फ़िरौन कहने लगा कि मैं तुम्हारी इस बच्ची को तुम्हारे ही सामने कत्ल कर दूंगा। बांदी फ़िरौन की इतनी बड़ी धमकी सुनकर भी ये कहने लगी कि अब मेरे दिल में इत्मीनान इतना बढ़ चुका है कि मैं अपनी आंखों से बेटी को खून में लथपथ तड़पता तो देख सकती हूँ, मगर मैं अपने ईमान का खून नहीं देख सकती। चनाचा बांदी के सीने पर ही उसकी मासूम बच्ची की गर्दन काट दी गई। जब वो बच्ची ठंडी होगी तो फ़िरौन कहने लगा कि अब हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो वह कहने लगी तू जो मर्जी चाहे कर ले, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बिल आखिर उस जालिम ने उसको भी शहीद कर दिया। उसके बाद फ़िरौन जब हज़रत मशाता को शहीद करवा कर अपने घर पहुंचा तो अपनी बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहने लगा कि आज ये वाक़या पेश आया है कि मैंने एक औरत को इबरतनाक सज़ा दी है। उसकी बीवी ने उससे कहा, अरे तेरा नाश हो, तूने एक मासूम बच्ची की जान भी ली और एक बेगुनाह औरत का कत्ल किया। फ़िरौन कहने लगा कि मैंने उसको इसलिए इबरतनाक सज़ा दी है कि वो मुझे खुदा नहीं मानती थी। ये सुनकर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि खुदा तो मैं भी तुझे नहीं मानती, बल्कि तू तो एक आम इंसान है। जब फ़िरौन ने यह सुना तो हैरान रह गया, क्योंकि उसे हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न जमाल अता किया था। फ़िरौन ने उन्हें पूरी कौम की औरतों में से चुनकर उनके हुस्न की वजह से
अपनी बीवी बनाया था, इस वजह से वो उनसे बड़ी मोहब्बत करता था। चनाचा फिरौन कहने लगा कि ये तुम कैसी बातें करती हो। वो कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि तू झूठा है। परवरदिगार तो वही है जिसका पैगाम लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। फिरौन ने यह बात सुनी तो उससे बहुत गुस्सा आया, लिहाजा कहने लगा कि मैं तुम्हारा भी वही हशर करवाऊंगा जो मैंने मशाता का कराया है। वह कहने लगी, तू जो चाहता है कर ले मेरे साथ, मेरा परवरदिगार है। अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने परवरदिगार को कभी नहीं छोड़ सकती, अलबत्ता तेरी हर चीज़ को लात मार सकती हूँ। जब उसने ये बात सुनी तो वह फिर दरबार आया और उसने फिर से लोगों को जमा किया और कहने लगा कि देखो ये कितनी बड़ी साजिश होगी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी बीवी को भी बहका लिया। आज मैं इस औरत को या तो मार डालूंगा या फिर वह अपनी बात से हट जाएगी। चनाचा उसने हजरत आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को गिरफ्तार करवा लिया। एक वक्त था कि वो मलिका थी और इनके इशारे पर नौकर चाकर भाग भाग कर काम किया करते थे। लोग एहतराम की वजह से इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे और आज वो फिरौन के दरबार में मुल्ज़म बनकर खड़ी हैं, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में। फिर फिरौन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहने लगा कि तू इतने आलीशान महल में रहती है, इतनी नेमतों में पली है और मैंने तुझे अपने महबूबा बनाया, लेकिन मैं सब कुछ तुझसे छीन लूँगा। बेहतर ये है कि तू अब भी बाज आ जा और मुझे खुदा मान ले। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी कि मैंने अब ईमान कबूल कर लिया है, इसलिए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। चनाचा फिरौन ने फैसला कर लिया कि मैं उससे भी सज़ा दूंगा। उसके बाद फिरौन ने सबसे पहले सज़ा के तौर पर इन्हें रस्वा करने का फ़ैसला किया। चनाचा उसने कहा कि सबसे पहले इस औरत के जिस्म से लिबास उतार दिया जाए। अब सोचने की बात यह है कि किसी मर्द को कहा जाए कि तुझे लोगों के दरमियान बेलिबास कर देंगे तो इसको कैसी शर्म आती है। वो चाहता है कि ज़मीन फट जाए और इसमें मैं समा जाऊं, और औरत के अंदर तो अल्लाह ताला ने शर्म और हया ज़्यादा रखी है। फिरौन ने इनके जिस्म से लिबास उतरवा दिया और वह कैसी सूरत हाल का शिकार हुई। एक तरफ ईमान है और दूसरी तरफ इम्तिहान है, लेकिन वह डटी रही। फिरौन ने कहा, अच्छा अगर आप भी नहीं मानती तो मैं तुझे इस तरह का अजाब दूंगा। चनाचा फिरौन ने कहा कि इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके लटा दो ताकि आखिरी वक्त भी निगाहें उसकी मेरे महल पर लगी रहें और उसके जहन में ये बात रहे कि इन नेमतों को ठकरा कर जलील और ख्वार होकर मैं मर रही हूँ। लिहाजा उन्हें फिरौन के हुक्म के मुताबिक लटा दिया गया। उनके हाथों और पैरों में लोहे की किलें गाड़ दी गईं ताकि वह हिल ना सके। इसके बाद फिरौन ने लोगों को बुलाकर कहा, इसके जिस्म से खाल उतार दो। इस जालिम ने जिंदा के जिस्म से खाल उतरवा दी। वो भी औरत, नाजुक बदन, मगर वो इसको बर्दाश्त करती रही। इन्हें अल्लाह के नाम पर बर्दाश्त करती रही। इन्हें अल्लाह के नाम पर तकलीफ दी जा रही थी। इस तरह इनके जिस्म से खाल को अलग कर दिया गया। अल्लाह की शान देखिए कि वो अभी भी जिंदा थी, मगर जिस्म जख्म बन चुका था। फिरौन का दिल अब तक ठंडा नहीं हुआ था। चनाचा वो कहने लगा, मिर्चें लाओ और इसके पूरे जिस्म पर मिर्चें छिड़क दो। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म पर मिर्चें डाल दी गईं तो वह मछली की तरह तड़पने लगी। इस तड़पने की हालत में उन्होंने अल्लाह ताला के हजूर एक दुआ मांगी कि ए अल्लाह, फिरौन का महल सामने है और वो ये कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया, आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकोगी, इसीलिए ए अल्लाह, मुझे इस महल के बदले जन्नत में तेरे पास एक घर चाहिए और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात अता फरमा। अल्लाह ताला ने इसी हाल में इनको शहादत के मर्तबे पर फायज फरमाया और जन्नत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा बना दिया। माजी में लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ देकर अपने ईमान को बचाया है। जुल्म के पहाड़ सह लिए लेकिन ईमान का सौदा ना किया। हर बातल ताकत से टकरा गए लेकिन अल्लाह को नाराज़ ना किया। आज के गुजरे दौर में हमसे बहुत छोटी कुर्बानी मांगी जाती है। क्या हम इतने एहसान फरामोश और इतने गे गुजरे हो गए हैं कि 5 वक्त की नमाज भी ना पढ़ सकें। अल्लाह ताला हमें इस अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस तरह के मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।